Assalamu alaikum. New Oxford Social Studies for Pakistan, Class 4th. I hope you all are good. Today we are going to start our new lesson, lesson number 19, from chapter number 8, People and Work. Today our main topics are first one is population, second census, third one is static and data, fourth one is work of people, and fifth one is services. Today our learning outcomes are you can define the population, you can explain the census, you can explain the overpopulated areas issues, you can explain the governmental services, and you can explain the ways how people earn and their professions. Our first topic is population. Population means abadi. All the inhabitants of a particular place or population is the number of people or animals in a particular place. यानी किसी भी खास एरिया के अंदर या किसी भी खास जगह के अंदर जब लोग इकट्ठे होकर रहते हैं या एक खास एरिया के लोग होते हैं वो वहां की आबादी या वहां की पॉपुलेशन कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन इज ओवर 8 मिलियन पीपल लिविंग इन न्यूयॉर्क सिटी. यानी किसी भी शहर के जो लोग हैं वो उस एरिया की या उस शहर की पॉपुलेशन कहलाते हैं. Population of Pakistan. Pakistan, officially the Islamic Republic of Pakistan, is a country in South Asia. It is the world's fifth most populous country with a population exceeding 207 million. पाकिस्तान जो है दुनिया का पांचवा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है और इसकी आबादी दिन ब दिन जो है बढ़ रही है और अभी हमारी जो आबादी है वो 207 मिलियन के करीब है. और अगर ऐसे ही पाकिस्तान की आबादी बढ़ती रही तो हमें आने वाले वक्तों में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा. Our next topic is census. Census means census is a procedure of systematically enumerating and acquiring and recording information about the members of a given population or an official count or survey specialty of a population. सेंसस को उर्दू में मर्दमशुमारी भी कहा जाता है. बेसिकली सेंसस जो है वो एक तरीकाकार है या एक सर्वे की तरह होता है जिसके अंदर ऑफिशियली जो है किसी भी एरिया की पॉपुलेशन जो है उसको गिना जाता है, काउंट किया जाता है. और सेंसस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर स्टेट के लिए. Census in Pakistan. A national census is mandated by the Constitution of Pakistan to be held every 10 years. यानी पाकिस्तान के अंदर सेंसस जो है या मर्दमशुमारी जो है वो हर 10 साल के बाद की जाती है. लेकिन since 1951 there have been only 6 nationwide censuses. लेकिन कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए पाकिस्तान के अंदर जिनकी वजह से रेगुलरली जो है वो सेंसस नहीं कंडक्ट किए जा सके. सिर्फ अभी तक 6 सेंसस जो हैं वो कंडक्ट किए गए हैं. लाइक 1961 में, 1972, 1981, 1998 में और अब 2017 के अंदर एक सेंसस कंडक्ट किया गया है. पाकिस्तान लास्ट कंप्लीटेड सेंसस टुक प्लेस इन 2017. Our next topic is why do we need a census? ऐसी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से सेंसस जो है किसी स्टेट के लिए अहम होता है या किसी भी एरिया के लिए अहम होता है. A census aims to count the entire population of a country and at the location where each person usually lives. The census asks questions of a people in homes, groups, living situations, including how many people live or stay in each home and the sex, age, race of each person. Census information help providers predict the spread of diseases through communities with children or elderly people. And when disasters hit, the census tells rescuers how many people will need their help. Census numbers help industry reduce financial risk and locate potential markets. यानी सेंसस जो है किसी भी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं और गवर्नमेंट जो है वो सेंसस इसलिए कंडक्ट करती है कि उसे अपनी पॉपुलेशन के जो बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो पता हो, उसे मालूम हो कि हमारी पॉपुलेशन की जो लिविंग स्टाइल है वो क्या है, किस सिचुएशन में वो लोग रह रहे हैं, सेक्स, एज, रेसेस वगैरह क्या हैं
और उनकी क्या नीड्स हैं, क्या फैसिलिटीज जो हैं उनको देने की ज़रूरत है। तो उसके जब गवर्नमेंट जो है वो सेंसस के थ्रू डाटा कलेक्ट कर लेती है, तो उसके बाद वो अपना बजट वगैरह सारा कुछ सेट करती है। डिफरेंट एरियाज के लिए उसे मालूम होता है कि हर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं और उनके लिए कितने जो है चीज़ें देने की ज़रूरत है, या कितना उस एरिया को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। अगर किसी एरिया में इतनी आबादी है तो उसके लिए कितने स्कूल हॉस्पिटल्स वगैरह चाहिए। इसीलिए सेंसस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। Our next topic is statics and data. Statics mean adadu shumar. Statics are facts which are obtained from analyzing information expressed in numbers. For example, information about the number of times that something happening. Same data is a plural of datum, which is originally a Latin noun meaning something given. Today, data is used in the English both as a plural or plural noun मीनिंग फैक्ट्स और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। बेसिकली डाटा जो होता है वो किसी भी जगह की, किसी भी चीज़ की, किसी भी टाइप की जो है वो इंफॉर्मेशन होती है। आपका पर्सनल डाटा हो सकता है जिसके अंदर आपका बायोडाटा हो सकता है, आपका नाम, जगह, आपकी पिक्चर, आपके घर का एड्रेस, ये सारा जो डाटा है। फॉर एग्जांपल स्कूल में आपका एज अ स्टूडेंट डाटा मौजूद होता है जिसके अंदर आपका फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपके बहन भाइयों का डाटा होता है। उसके अलावा आपकी पिक्चर होती है, उसके अलावा आपके घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर्स वगैरह मौजूद होती हैं। तो ये सारा डाटा कहलाता है। और गवर्नमेंट बेसिकली डाटा और स्टैटिक्स पॉपुलेशन के इसलिए कलेक्ट करती है ताकि वो जान सके कि किस एरिया में किस चीज़ की ज़रूरत है, और किस एरिया में या किस एरिया की पॉपुलेशन जो है या आबादी जो है उसको किस चीज़ के लिए फैसिलिटेट करना है, या क्या चीज़ उनको मुहैया करनी है। Our next topic is problems of overpopulation. Overpopulation can lead to food insecurity. Approximately 60% of Pakistanis already live with food insecurity. If the population continues to increase, farmers will resort to using agricultural lands for settlement as the urban areas become more crowded. Others are like lack of schools, hospitals, housing, jobs, increase in social crimes, environmental issues. All these are problems of overpopulation. जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे मसाइल बढ़ेंगे, वैसे वैसे ज़रूरतें ज़िंदगी जो है वो कम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, महंगाई ज़्यादा हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, गैस का इशू है, यानी बेसिक नीड्स जो हैं वो हमारी पब्लिक को, हमारी आवाम को नहीं मिल पा रही। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। Our next topic is work, yani काम. Activity that a person engages in regularly to earn a livelihood. People looking for work. A specific task, duty, function, or assignments often being a part or phase of some larger activity. यानी ये सब मसाले हैं काम की। काम किसी भी तरह का हो सकता है, छोटा बड़ा किसी भी तरह का, जिससे आप अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है उसको पूरा कर सकें। Profession in Pakistan. People of Pakistan work as doctors, traders, engineers, police officers, teachers, drivers, bankers, mechanics, farmers, and work as labor in industries, etc. Many people work as a businessman. Some people work as a social worker with different organizations. Our next point is work with dignity. The dignity of labor is the philosophy that all types of job are respected equally and no occupation is considered superior and none of the jobs should be discriminated on any basis. यानी आप किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं तो आप इज्जत के साथ करें और दूसरों की भी इज्जत करें। अगर कोई छोटा काम भी कर रहा है, कोई कूड़ा उठा रहा है, कोई किसी के घर में सफाई कर रहा है, आपके घर में मेड मौजूद है तो उसकी रिस्पेक्ट करें क्योंकि वो काम कर रहा है। वो आप उस पे कोई एहसान नहीं करे, वो काम कर रहे हैं और आप उसके बदले में उसको पे कर रहे हैं, तो सो आपका काम है कि उसको रिस्पेक्ट भी दें।
Every job has a value. Some people earn a lot of money for work, but on the other hand, some people don't earn so much. लेकिन हर जॉब की अपनी एक वैल्यू होती है. सम जॉब्स आर गुड और उन पे ज़्यादा पे किया जाता है, और सम जॉब्स जो होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती. फॉर एग्जांपल, जैसे कि कूड़ा उठाने वाला है, उसका जो काम है वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता, और उस पर वो बहुत उसको कम पे भी किया जाता है. लेकिन एक हाई बिजनेस क्लास जो आदमी है, उसका जो काम है, और एक कूड़ा उठाने वाले का जो काम है, उसकी सेम रिस्पेक्ट और वैल्यू है. दोनों अपनी अपनी जगह अपनी मेहनत कर रहे हैं. The Prophet Muhammad, peace be upon him, was asked what type of earning was the best, and he replied, a man's work with his hands. एक और जगह उनसे पूछा गया, The Prophet Muhammad said, it is better for any of you to carry a load of firewood on his own back than to beg from someone else. यानी भीख मांगने से, दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लें या छोटा मोटा काम ले लें, लेकिन हक हलाल का कमाएं और खुद से अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए कमाएं. Services and services by government are systems supplying a public need such as transport, communication, or utilities such as electricity and water. The action of helping or doing work for someone. Public service is a service intended to serve all members of community. It is usually provided by the government to people living within its jurisdiction, either directly or by financing provision of services. Some important public services are like courts for justice, electricity, education, emergency services, environmental protection, campaigns, etc. Healthcare, military for defense, public transportation. Special departments of government. गवर्नमेंट अपने काम को सर अंजाम देने के लिए बहुत से डिपार्टमेंट्स जो है वो तश्कील देती है, बहुत से डिपार्टमेंट्स बनाती है, जिनके थ्रू जो है वो हमारी ज़रूरत ज़िंदगी जो है उसको पूरा करती है और हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है. लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इसके थ्रू हमें सारी जितने भी टेली कम्युनिकेशन होती है या किसी भी तरह की कम्युनिकेशन जो है वो हम तक पहुंचाई जाती है. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काम होता है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज जो है उनको देखना. मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का काम है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए, गैस सप्लाई, जो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड की जाए. नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग. इसका काम है हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना और उसके साथ साथ हमें स्किल्स सिखाना. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, इनका काम है हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना, हमें लोन्स प्रोवाइड करना, एक्सेट्रा. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क, हमारे काम और हमारे रहने सहने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं या हमारे घर का जो रेंट वगैरह है वो गवर्नमेंट कैसे पे करती है, उससे रिलेटेड जो ये मिनिस्ट्री बनाई गई है. जो गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं जो गवर्नमेंट के अंदर जॉब करती हैं, ये मिनिस्ट्री उनके लिए काम करती है. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर हमारे जितने भी राइट्स हैं उनके बारे में देखा जाता है कि वो राइट्स हमें पूरी तरह से मिल रहे हैं या नहीं. नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च. इस मिनिस्ट्री का काम है कि वो फूड के बारे में देखे कि क्या जो उसकी पब्लिक है उसको प्योर फूड प्रोवाइड की जा रही है या नहीं, उसके ऊपर रिसर्च करे, उसको देखे कि किन जराए से हमें प्योर फूड जो है वो मुहैया की जा सकती है. नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज. इस मिनिस्ट्री का काम है कि हमें हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें. नेक्स्ट वन इज पोस्टल सर्विसेज. इस मिनिस्ट्री का काम है कि हमें पोस्टल सर्विसेज यानी हमारी पोस्ट से रिलेटेड या हमारे जो पार्सल्स हैं या हमारे जितने भी लेटर्स या डॉक्यूमेंट्स हम एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो ये मिनिस्ट्री उनको देखती है. नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. इसका काम रेलवे से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको देखना है. मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इसका काम पानी के जो मसाइल हैं उनको हल करना और लोगों को पानी और ये वाटर सप्लाई जो है वो मुहैया करना है. इस तरह के और बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक को या अपनी जो स्टेट की पॉपुलेशन होती है उसको फैसिलिटेट करने के लिए बनाए होते हैं, उसके मसाइल को हल करने के लिए बनाए होते हैं.
Okay, dear students, today your home task is question number 1, 2, 3, 4, and 5. Question number 1 is, how does the government find out about the people living in Pakistan? Answer is, the government finds about the population in the country by holding census after every 10 years. यानी 10 साल के बाद जो सेंसस किया जाता है उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो पॉपुलेशन से अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करती है, फाइंड आउट करती है कि कितनी आबादी मौजूद है, तो उसका तरीकाकार सेंसस है. क्वेश्चन नंबर 2, why do we need to know the details about the country's population? ऐसी क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें जरूरत पड़ती है कि हम कंट्री की पॉपुलेशन जो है उसके बारे में जानें? Answer is, we need to know the details about the country population in the order to plan for the future. यानी प्लान करने के लिए, फ्यूचर को प्लान करने के लिए हमें पॉपुलेशन का जानना बहुत ज़रूरी है. अगर पॉपुलेशन के बारे में नहीं मालूम होगा तो किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कैसे डिसाइड कर सकती है कि किस एरिया के लिए कितनी बजटिंग करनी है, किस एरिया को कितना फैसिलिटेट करना है, किस एरिया को किस चीज़ की नीड है और उसकी जो ज़रूरत है वो उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितनी है. तो इसलिए पॉपुलेशन का जानना बहुत ज़रूरी होता है. Our next question is question number 3. What is the importance of education and training for people? एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और लोगों के लिए ट्रेनिंग जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आंसर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पीपल आर एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड सो दैट दे कैन फाइंड जॉब्स फॉर देमसेल्फ. और इसके साथ साथ मुल्क की जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, उसमें अहम रोल ऐसे लोग अदा करते हैं जो ट्रेंड होते हैं और वेल एजुकेटेड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट आर द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द ओवर पॉपुलेशन? अगर आबादी ज़्यादा होगी तो ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो पैदा हो जाएंगे? तो इफ अ कंट्री इज ओवर पॉपुलेटेड इट लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स सच एज लैक ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हाउसिंग, जॉब्स, फूड सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, etc etc. Let's start our bookwork page. Page number 64. First one is, pick a tick against the correct statements and a cross against the false ones. Our first statement is, there are about 110 million people in Pakistan. This statement is false because there are 207 million people in Pakistan. Second one is, information about people is collected during a census. This statement is true. Third one is, most of people in Pakistan live in cities. This statement is false. हमारी ज़्यादातर आबादी जो है वो villages में रहती है. Fourth one is, some people in country have no work to do. This is true. हमारी ज़्यादातर population जो है उसके पास काम मौजूद नहीं है. Fifth one is, every job has a value. Yes, this statement is true. काम किसी भी तरह का हो उसकी अपनी वैल्यू है, चाहे फिर कोई काम छोटा हो या बड़ा. Okay, next one is B part. Complete the word puzzle. All the words are names of professions. नीचे कुछ blocks दिए गए हैं, blank blocks हैं. इनको आपने देखते हुए जो आपको हर एक जैसे फर्स्ट वन है उसके अंदर आपको पी लेटर दिया हुआ है और आपको देखना है कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसके अंदर पी लेटर जो है वो 4 नंबर पे आता है. इसी तरह सेकंड पे आर आपको दिया हुआ है. तो मतलब इन प्रोफेशंस ब्लॉक्स के अंदर प्रोफेशन लिखा हुआ है, आपको इनको देखते हुए डिफरेंट प्रोफेशंस जो है उनको फिल आउट करना है. लाइक फर्स्ट वन इज, इसके अंदर कारपेंटर आएगा, CARPENTER. आपको नीचे हिंट्स भी दिए गए हुए. जैसे फर्स्ट वन का है, मेक्स थिंग्स फ्रॉम वुड, यानी लकड़ी से जो चीजें बनाता है ऑफ कोर्स वो कारपेंटर होता है. सेकंड वन दिया हुआ है, पेंट्स पिक्चर्स, यानी जो पिक्चर्स को पेंट करता है तो वो कौन बंदा होता है? ऑफ कोर्स आर्टिस्ट होता है. थर्ड वन इज, हेल्प्स द सिक टू गेट बेटर. आप लोगों को सेहतमंद कौन बनाता है? सेहतमंद होने में मददगार कौन होता है? तो वो डॉक्टर है. Fourth one is chef. Fifth one is dentist. Sixth one is postman. Seventh cashier. Eighth one is pilot. Ninth one is actor. Tenth one is painter. And 11th one is nurse. Guidelines for parents. All the main points discussed in the lecture. Make sure students listen the lecture carefully. Question number 1 to 4 discussed in the lesson. So ask your child to do
1 to 4 all questions on notebook, but first draw title page. Make sure that spelling should be correct while writing answer. Make sure your child learn the home task on daily basis. Dear students, all the topics and questions discussed in the lecture, complete your home task on time. Thank you.